Jai Hind, everyone. I hope you're all good. Uh, for those who don't know me, a little bit introduction about myself. Uh, my name is Navjot Singh, and I am a former officer of Intelligence Bureau, having served in the bureau for about 5 years, and I served in the various counter-insurgency and intelligence roles, uh, safeguarding the internal security of the country. And it's my absolute proud privilege to have been a part of such prestigious organization. And I must say, we are all contributing to the welfare of our country, securing our country's national interest. So I had this great opportunity to serve there, and I am really grateful for that. After my tenure in the intelligence, I joined as an enforcement officer in the Ministry of Labor. I'm an enforcement officer of 2017 batch, and apart from that, I have also been a former corporate consultant. I worked in the corporate sector on a project based in London, and that also was a very enriching experience. About 2 to 3 years I worked there and learned a lot of things about the corporate culture. And I have also been a motivational speaker. I have delivered Josh talks as well as various other platforms in various colleges and universities. I also mentor students. I'm a UPSC and interview personality development coach. I mentor students for various examinations, and it was my absolute privilege to have successfully guided 43 candidates, and the number is increasing to the recently concluded Intelligence Bureau examination. So, my opportunity to stand here, I find myself, extremely grateful to be having this conversation with you. Uh, if you want to reach out to me, you can reach out to me on my social media handles on Instagram, Facebook, YouTube, on Navjot Singh _IB. If you mention that, you will find me. And see, the idea of our today's discussion here, today we are, we are meeting today to discuss about the EPFO examination. So, having served in the organization, I can tell a thing or two about what is the opportunity that this exam offers, and what are the long-term, career profile, career growth, and what is the job profile, what you will get there, how we can prepare for the examination as well. So all these things we are going to discuss today. And if you have any queries, you can mention in the comments as well, and we will reach out to you. And that is about it. So see, understand one thing, that this EPFO examination is conducted by the Union Public Service Commission. ये एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है. तो यूपीएससी ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर और एवरी 2 years में एक बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है. एंड आई मस्ट से दैट इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन. ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके. एंड द ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 का जो एक्ट था, उसके तहत इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई. और उसके बाद किस तरह से सोशल सेक्टर में, देखिए, आई हैव वर्कड इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड नाउ सोशल सिक्योरिटी, एंड आई कैन टेल यू द स्पेक्ट्रम इज रियली वाइड. इन दिस wider spectrum, we get this opportunity to deal with the people on various fronts. In social security, that is the EPFO domain, यहाँ पे आपको ये opportunity मिलेगी, आप लोगों के जो grievances हैं, first hand opportunity to address those grievances is what you will be getting here. So I can really say that this is a golden opportunity for you. If you have that passion inside you, if you have the commitment to serve the country, if you want to get a prestigious job, a job which, not just fulfills your career goals, as well as it gives a sense of satisfaction, this one is definitely the one for you. And as far as the opportunities available, ईपीएफओ में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, तो सबसे पहले तो आप एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो, और या आप एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रोल पे जा सकते हो. ये दो अपॉर्चुनिटीज हैं. दीज आर द टू रूट्स इन द ऑफिसर कैडर. यू ऑल्सो हैव द other roles as well, the triple SA and the social security assistants, a lot of that roles, that those exams are conducted by EPFO themselves. But these two examinations, since they are of the officer cadre, they are conducted by the UPSC itself. And इससे आपको ये पता चलता ही है the credibility of the examination. हर साल अगर आप देखते हैं कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं आप लोग, तो आपके पास सीमित
लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। हर साल 6-7 लाख लोग अगर एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो तकरीबन 800-900 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इट इज ओनली वाइज, इट इज ओनली प्रूडेंट that those of you who are preparing for civils or for other examinations, it is only pertinent for you to take up this opportunity. आप इस opportunity को grab जरूर करना है। जहां तक हम बात करें अगर enforcement officer की, it's a group 2 ministerial job, level 8 में है, it's a good perspective आपको salaries के point of view से, you're gonna get good opportunity। अगर आप APFC की बात करें, that is a group A job। और in fact अगर हम enforcement officer की भी बात करें, after 4 years you will get promoted to ग्रुप 5400 ग्रेड पे बैंड 1। तो आप उसमें आपकी इट्स अ टाइम स्केल प्रमोशन आपकी उसमें हो जाती है। NFSU है, वो आपकी प्रमोशन वहां पे हो जाएगी। यू विल नॉट गेट द रैंक ऑफ एन APFC, बट यू विल गेट दैट पे स्केल, यू विल गेट दैट पे स्केल, एंड देन आफ्टर अनदर few years you will get promoted to that rank as well। तो this is a good opportunity I would rather say। अब देखा जाए तो इस एग्जाम में एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको वहां पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपका काम क्या होगा। तो अगर आप देखिए APFC का जो काम है, एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो काम है, वो है आपका जो EPF एक्ट 1952, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952 एक्ट है, उसको आपने इंप्लीमेंट करना है। और इस EPFC एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र तक। अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक है तो आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ऑब्वियसली जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए अकॉर्डिंगली देयर विल बी, एंड सिमिलरली फॉर द APFC योर एज लिमिट इज 35 ईयर्स। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा क्या होता है, जो एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो रोल है, एनफोर्समेंट ऑफिसर का रोल थोड़ा सा आपको शुरू में आपको अकाउंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, किस तरह से आप अकाउंट्स ऑफिसर का जो काम है वो संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद किस तरह से उस तरह आपको वहां पे एक्सपोज किया जाएगा, व्हाट इज द निटी-ग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन बी पोस्टेड इन द केयरटेकर सेल, यू कैन बी पोस्टेड इन द लॉजिस्टिक्स, यू कैन बी पोस्टेड इन द public relations as a public relations officer, and after getting some exposure, after 1.5 year 2 years आपको एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर लगाया जाता है। तो जब आप एनफोर्समेंट ऑफिसर लगते हैं तब आप फील्ड विजिट्स पे जाते हैं, आप इंस्पेक्शंस करते हैं, आप EPF एक्ट की कंप्लायंस इंश्योर करते हैं, आप पेनल्टीज लगाते हैं। जैसे जो EPF एक्ट की कंप्लायंस के लिए आपका रोल क्या होता है कि आपने जाके एम्प्लॉयर को एस्टेब्लिशमेंट पे जाके इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो वो हम डिटेल में बाकी आगे डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल। सो one thing that is very important is the job stability। What about the job stability? See, a government job is there, the government job में you will definitely get a job stability। पर मेरा ये मानना है, मैं आपको ये कहूंगा, आप किसी भी नौकरी में जॉब स्टेबिलिटी के लिए मत आइए। अट्रैक्टिव पे पर्क्स हैं आपके पास, बेनिफिट्स हैं, करियर ग्रोथ अच्छी है, वर्क कल्चर आपका अच्छा है, सोशल इंपैक्ट आपका है, ये सारी चीजें हैं, इस पे हम बात करेंगे। पर इससे पहले मैं आपसे एक बात जरूर करना चाहूंगा कि आप अगर आना चाहते हैं किसी भी देश सेवा में, आप देश प्रेम की भावना से आइए। सी, आई ऑलवेज कीप टेलिंग द एस्पिरेंट्स, दिस इज समथिंग दैट आई जेन्युइनली एंड ऑथेंटिकली बिलीव। You do not become an officer after getting into the service. That's very, very categorically clear. You don't become an officer after qualifying the examination. First, you chisel those qualities in yourself. First, you ingrain yourself with those qualities of head and heart. Become worthy of becoming one, and then you become an officer. That is actually the criteria. That is actually the how things should be. ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। ऑफिसर बनना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ऑफिसर बनने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटीज अगर आप इम्बाइब कर पाएंगे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि वो प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर एबल टू फॉलो द प्रोसेस, देन यू कैन डेफिनेटली बिकम वर्दी ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। देन जो एग्जाम क्वालिफाई करने का प्रोसेस है वो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है, दैट विल हैपन ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। दैट वाज गोइंग टू हैपन एज प्लाइनी द एल्डर, इफ यू रिमेंबर दिस जेंटलमैन, Pliny the Elder, he said in 78 AD, Pliny the Elder in 78 AD, this is a Roman philosopher, thinker, general. He said that everything is impossible until it isn't. So who makes the things possible? It is we make the things possible, and to make things possible
we have to ensure that we put our head and heart in the right place. Now coming back to again the profile of the job. जॉब स्टेबिलिटी तो आपको सरकारी नौकरी में मिलेगी, सैलरी आपको कहीं भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको एक सिक्योर स्टेबिलिटी मिलेगी. यू विल नॉट बी लाइक हायर एंड फायर, कोविड आ गया एंड यू विल बी कॉस्ट कटिंग रिट्रेंचमेंट मेजर्स के तहत आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा. वैसा नहीं है. अनलेस देयर इज एन एक्सट्रीम डिसिप्लिनरी केस अगेंस्ट यू, यू हैव सर्टेनिटी ऑफ टेन्योर, दैट इज गोज विदाउट सेइंग. पे बेनिफिट्स इनके बारे में ज्यादा बात करता नहीं हूँ. आपको अच्छी सैलरी यहाँ मिलेगी, ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज हैं, और आपको एक अच्छा एक सोशल, एक तो होता है आपको सोशल, एक आपकी प्रेस्टीज है. आप यू क्वालिफाइंग यूपीएससी एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली इट एड्स टू द प्रेस्टीज ऑफ योर जॉब ऑल्सो, कि आप किसी को बताएंगे आई हैव क्वालिफाइड यूपीएससी टू गेट इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन. Absolutely, that adds a sense of credibility. Obviously, that is obviously there. So about perks, pay, benefits you will get when you join there. You will get briefcase benefits, medical allowances, other allowances, lot of other things. So that is there. That is not going to be, I don't encourage you to look at the salary and then go for the job. No, you should have the right intention of getting into the services. My agenda is not to entice you to join a certain organization. My agenda here is to ensure I give to you the correct message, the correct information that is required, and then you decide for yourself that whether you fit the bill. It is not that, देखिए आपका ना एप्टीट्यूड भी किसी चीज के लिए सूटेबल होना बहुत जरूरी है. whether you have the right kind of aptitude to work in a certain job, that also should be taken into consideration. Also career growth and opportunities. अगर आप as an enforcement officer join करते हैं तो you can go up till Regional Provident Fund Commissioner 2, RPFC 2 at max RPFC 1, RPFC 1 और RPFC 2, max RPFC 1 तक, RPFC 2 तो आप बन जाएंगे. And if you joined as an APFC, then you can go on to become an additional, then you can go on to become additional CPFC, additional CPFC, additional Central Provident Fund Commissioner. तो all over India अगर देखिए national level पे अगर हम बात करें, at all India level, at the national scale, EPFO is headed by CPFC. It is headed by CPFC. CPFC. He is generally an IAS. He is generally an IAS. ठीक है? CPFC heads the organization at the top of the tier. ठीक है? उनके नीचे there are lot of. The next is the additional CPFC. There are a lot of additional CPFCs, and he sits in Delhi generally. And in the Delhi headquarters, there are a lot of other additional CPFCs to assist the CPFC. Generally, these additional CPFCs, they head the zonal offices. So they head the zonal offices. Okay, they head the zonal offices. Under the zonal offices, there are various ROs. ROs means there are various regional offices. So regional offices are headed by RPFC 1, Regional Provident Fund Commissioner 1. He heads the regional office. And under the RPFC 1, there is generally in the same RO, there can be various RPFC 2s, generally 2 to 3. But in general, 1 also suffices. And after that, you have the APFCs, Assistant Provident Fund Commissioners, and they are on, if here you can mention generally 1 to 2 basically, and 2 to 3 Assistant Provident Fund Commissioners, और उनके बाद आपके आएंगे enforcement officers, 7 to 8 enforcement officers depending upon the size of that regional office. So this is the hierarchy, this is the setup. So from EO you can reach up till here or up till here. If you start here, you can reach up till here. So it is your hard work. आप जितना hard work कर सकते हैं, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं. तो ये एक hierarchy है जो हमने समझ के career growth और opportunities की अगर हम बात करें. So this is basically the hierarchy, how things are going to function when you enter the organization. All right. Next you have the diverse work culture. Obviously this is there. So let me explain it to you. देखिए, enforcement of EPFO का mandate क्या है? EPFO is a social security organization. EPF Act 1952 that I have explained to you. What happens? इसमें आपका जो 3 मेजर स्कीम्स हैं. सबसे पहले तो आपकी प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है. देन यू हैव एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, देन एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976. ये 3 क्या बोलते हैं, उनकी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं.
ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 20 और मोर एम्प्लॉइज हैं, 20 और मोर एम्प्लॉइज हैं, जहां पे विच हैज 20 और मोर एम्प्लॉइज, एंड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन द ईपीएफ एक्ट अप्लाइज, द ईपीएफ एक्ट अप्लाइज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। और वहां पे उस एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना होता है कि आप उस जो वर्कर है उसका हर महीने की 15 तारीख, एवरी 15th ऑफ एवरी मंथ यू हैव टू सबमिट हिज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स इन द पीएफ अकाउंट विद द ईपीएफओ। तो ये चीज आपको क्लियर है, हर महीने की 15 तारीख को उनको अपना प्रोविडेंट फंड जमा करना है विद द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। अगर उस चीज को ब्रीच करते हैं, अगर वो 15 तक नहीं जमा करते हैं, देन इट इज कंसिडर्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज द वायलेशन ऑफ द एक्ट। और फिर डिफरेंट प्रोविजंस के तहत डैमेजेस, पेनाल्टीज, रिकवरी एंड देन क्वाजी जुडिशियल इंक्वायरीज होती हैं, ताकि उसको पिनलाइज किया जाता है, शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, उसको ही हैज टू एक्सप्लेन, चार्जशीट किया जाता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्यों नहीं कर आपने क्यों जमा नहीं किया है, जो पीएफ जो एम्प्लॉयर का, जो एम्प्लॉय का था, पीएफ जमा क्यों नहीं किया है। देखिए ये चीजें क्या है, जो एम्प्लॉयर है, अगर फॉर एग्जांपल आप ही एक एम्प्लॉयर हैं, आपने 100 बंदों को हायर करके रखा है, आप उनको सैलरीज देंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्रोविजन लगा रखा है कि 12% आपको 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी से जाएगा और 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देगा। तो देखिए एम्प्लॉयर अक्सर ये कोशिश करता है कि वो उस 12% जो अपना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसी तरह से बचा ले। तो वो क्या करेगा, कुछ अपने वर्कर्स को ऑन रोल रखेगा, मस्टर रोल जो होता है, रजिस्टर होता है, उसमें उनकी एंट्री करेगा, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेगा, उनको शो नहीं करेगा, तो उनका वो पीएफ जो बेनिफिट्स है उनको डिनाई कर दिए जाएंगे। दिस इज अगेन अ वायलेशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस इन द एक्ट। तो ये एक चीज है। तो इस चीज में थोड़ा सा ये आपको एक अवसर मिलेगा, आप कैसे इंस्पेक्शन करते हैं। जब when you go into an organization, you inspect the organization, you see the muster rolls, you see the wage registers, you see the balance sheet, and you will understand यार इसने तो झोल किया हुआ है, इसने तो मतलब अपना ड्यूज जो है वो पे नहीं किए हैं, इसने एम्प्लॉइज ज्यादा हायर किए हुए हैं बट हमें शो कम कर रहा है। तो वहां पे आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप पुलिस का इस्तेमाल, पुलिस विल ऑल्सो हेल्प। समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस, दीज एम्प्लॉयर्स दे गेट राउडी, दे आर नॉट वेरी कंप्लायंट। तो उस चीज में आपको पुलिस का भी मदद मिलती है, हाउ यू कोलैबोरेट विद अदर लियाजों विद various sister agencies to create a to ensure that the provisions of the act are implemented. Apart from this compliance, this is the compliance of the act. So apart from the compliance responsibilities, this is mostly the role of the enforcement officer. The provident fund commissioners, they depute the enforcement officers to go and inspect, and they do the inquiry and they submit their report, and accordingly things are done. इसके साथ आपको you will also get to work as a public relations officer. In the front desk, sometimes you will be assisted by a lot of subordinate staff, and you will get to hear the queries of the people. जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को अवसर मिला, तो वहां पे there was this gentleman, his daughter was studying in Australia. So I have told this example before as well. तो his daughter was studying in Australia और उसको फीस पे करनी है, और वो आई थिंक विद इन 1 वीक आई थिंक उसका था, नहीं तो उसकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो दिस जेंटलमैन ही वांटेड टू विड्रॉ हिज पीएफ अकाउंट, पीएफ डिपॉजिट्स, पर उसके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ दिक्कत है। डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्वियसली देयर वाज सम प्रॉब्लम। तो व्हाट आई डिड, आई इंश्योर्ड कि उनका जो एक्सपेडाइट कर दिया जाए कि टाइमली उनको उनका पीएफ का पैसा मिल जाए और वो अपनी बेटी की एडमिशन को करा सके और उसको नुकसान ना हो। सो दिस काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन इज देयर, द डाइवर्सिटी ऑफ वर्क रोल। देयर वाज दिस ओल्ड लेडी जिनका हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं जिनके, और उनको जो विडो पेंशन मिलनी है प्लस उनको इंश्योरेंस का पैसा मिलना है ईडीएलआई के अंदर, तो वो उनको नहीं मिला हुआ है क्योंकि उनके आधार कार्ड में कुछ इशू है, उनके नेम करेक्शन का कुछ इशू है। तो वहां पे भी देखिए ऐसे काफी मसले आपके सामने आते हैं, जहां आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होती है। आपके सामने in front of your eyes you can see, just with your signature or just with your intervention, through your intervention or with the intervention of your seniors, है ना, you can see how things can be changed on the ground. आप एक oppressed बंदे को, एक underprivileged बंदे को मदद करते हो, immediately उनका रिलीफ मिलता है, तो आपको भी एक sense of satisfaction। ये आप if I tell you about myself, I was working in the corporate some long years back. I was in the corporate, so earning a good salary, but वहां पे the sense of satisfaction is different. Only money can only, वो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में आपने
सबने सुना होगा कि मैस्लो जो नीड हायरार्की थ्योरी है कि सबसे नीचे आपकी फिजिकल नीड्स, फिर उसके बाद आपकी सोशल नीड्स, तो टॉप ऑफ द ट्री में आपकी जो साइको सोशोलॉजिकल नीड्स होती हैं, है ना, तो आपकी जो एक्चुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, तो वो आपको इवेंचुअली सर्विस ऑफ मैनकाइंड से मिलेगा। यहाँ आप सैलरी तो आपको मिलेगी, काम तो आप करोगे, किसी और डिपार्टमेंट में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादा पैसे मिले आपको, लेकिन यहाँ पे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे लगता है आपको ज़रूर मिलेगी। साथ में आरटीआई सेक्शन में भी अगर आपको एक इंचार्ज मिलता है तो आपको वहाँ पे भी डिस्पोजल ऑफ आरटीआई क्वेरीज का भी एक्सपोजर मिलेगा। फिर आप देखिए अगर तो प्रोक्योरमेंट, जो जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल के थ्रू प्रोक्योरमेंट होती है, वहाँ पे आप किस तरह से अपना एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं प्रोसेस को, एक ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, द एम्बिट इज़ रियली ब्रॉड। आपको बाकी एजेंसीज के साथ लियाज़ॉन, इलेक्शन ड्यूटीज़ में आपको सुपरविजन का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आप जब आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप ईपीएफओ में हैं तो यू कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग, यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू अदर सिस्टर एजेंसीज एज वेल। तो ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सिर्फ इधर आने से आप आएंगे तो आपको एक डाइवर्सिटी ऑफ वर्क कल्चर मिलेगा। और सोशल इम्पैक्ट की बात तो मैं कर चुका हूँ कि देखिए हमारे देश में जनरली अगर लेबर रिलेशंस की हम बात करें, आज़ादी से पहले 1881 में फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया था अंग्रेज़ों के वक्त। तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर को कर्टेल करने के लिए चाइल्ड जो 7 से 12 साल के बच्चे थे उनको उनके काम करने पे बैन लगाया गया। देखिए 7 से 12 साल तो बहुत कम उम्र है, तो तब उनसे भी काम कराया जाता था, और 12 साल से ज़्यादा थे उनको हैजार्डस एक्टिविटीज़ में नहीं लगाया। तो वो एक पहला इंटरवेंशन था। उसके बाद धीरे धीरे कैसे वेरियस, हमारा 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी जिसमें लाला लाजपत राय उसके प्रेसिडेंट बने। फिर उसके बाद 1926 में आपका ट्रेड यूनियन एक्ट बना, 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट बना। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई। वहाँ पे जो यूएस और ब्रिटिश जो लॉबी थी उनका डिफरेंट ओपिनियन था लेबर वेलफेयर को लेके। फिर वहाँ पे आईएलओ की स्थापना हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्फ्रेंसेस हुई काफ़ी। फिर वो कैसे बाद में जाके यूएन सिस्टम का हिस्सा बनी। 1947 में आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लाया गया, एक ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस हुई और एक ट्रूस किया गया। ट्रूस क्या किया गया कि अब वर्कर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अभी स्ट्राइक्स पे नहीं जाएंगे, लॉकआउट्स नहीं करेंगे, वर्कर्स को नौकरी से नहीं निकालेंगे। अब नेक्स्ट थ्री इयर्स के लिए फोकस रहेगा वेलफेयर पे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। तो ये देखिए लेबर वेलफेयर का रजीम बहुत देर से चलता आ रहा है। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद ईपीएफओ तो 1952 में इसकी स्थापना हुई, ईपीएफ एक्ट 1952। उससे पहले भी अगर हम प्रोविडेंट फंड की बात करें, ये आपका इंटरव्यू का सवाल भी बन सकता है। कोल माइंस इट्स द फर्स्ट डिपार्टमेंट और ऑटोनोमस बॉडी जहां पे प्रोविडेंट फंड की अपनी प्रोविजन, कोल माइंस सेक्टर हैज इट्स ओन प्रोविडेंट फंड। सो दिस वाज द फर्स्ट सेक्टर post independence which had its own provident fund. It was later extended to other, with PF Act coming into, the ambit was broadened with every organization with 20 or more employees. So that ambit was broadened to include a large variety of other industries as well. तो ये देखिए इस तरह से फिर धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 43 अल्फा, it talks about participation of workers in the management of industries. Then we have आर्टिकल 39 में फ्री लीगल एड की बात करते हैं, 39 अल्फा में बात होती है, 39 डेल्टा में कुछ बातें होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देन यू हैव इन फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स। तो ये बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लीगल मैंडेट्स, दे कम टुगेदर टू क्रिएट अ होलिस्टिक सिस्टम फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर क्लास। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में if the total workforce as per the official statistics, the total workforce is around 54 crores. It's around 54 crores roughly. If we take out of the total workforce, 90% of the workforce is in unorganized sector. Unorganized. So that makes it about 44 crores. 44 crore of the workers are working in the unorganized sector. So that's a big number, and around 10 crores are in the organized sector. तो ये जो ईपीएफ के लॉज हैं या कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस है, आपका ट्रेड यूनियंस एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, या आपके बहुत सारे और भी एक्ट है, प्लांटेशन लेबर को लेके हो गया,
then payment of wages, payment of bonus, है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट, ऑल दीज एक्ट, इनका इंप्लीमेंटेशन करना जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तकरीबन आसान है, पर जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं वहां पे इन लेबर लेजिस्लेशन का इंप्लीमेंटेशन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, ठीक है, उनको भी किस तरह से आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना भी है, हाउ यू हैव टू स्टडी अबाउट दी वेरियस schemes that come for both the integrated both these sections। अभी रिसेंटली हमने देखा है 2019-20 में 4 नए लेबर कोड्स लाए गए, लेबर कोड्स ऑन वेजेस, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो जो बहुत सारे जो हमारा लेबर लॉज थे बहुत सारे, उनको एक फ्रेमवर्क में लाया गया ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके लेबर वेलफेयर के प्रोविजंस को और एम्प्लॉयर्स को अकाउंटेबल भी होल्ड किया जा सके। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके बाद देखिए जब रिसेशन आता है तो रिट्रेंचमेंट होती है, ठीक है, वर्कर्स को ले ऑफ किया जाता है, कॉस्ट कटिंग की जाती है, डाउन साइजिंग की जाती है, इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो ये आपको एग्जाम के लिए ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रीफ पर्सपेक्टिव कि जो चीजें आपको एग्जाम में पढ़नी भी हैं, what you are going to be studying for the examination as well, but also I would like to see these things are going to help you in your other examinations as well as in your interview। तो लेबर वेलफेयर इज वन ऑफ द वेरी पर्टिनेंट सेक्शंस। और ईपीएफ में जब आएंगे ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ईपीएफ में जाएंगे आपके पास फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप किस तरह से वो अपने मैंडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेडफास्ट रह के ईमानदारी से अपना काम करके आप लोगों को उनका हक दिलवा सकते हैं। और ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मूविंग ऑन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मैंने जैसे हम बात कर ही रहे हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस का बारे में मैंने आपको बताया कि कंप्लायंस किस तरह से होता है कि आप जो ईपीएफ एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उसकी प्रोविजंस को इंश्योर करेंगे कि एम्प्लॉयर वो उनको वर्कर्स को उनके हक दे, वो चीज़ों को इंश्योर करे। दैट इज I think something that is going to be your role when you get into the organization। So particularly this is the EPF inspection and enforcement। आप इंस्पेक्शन करेंगे जाके आप ऑर्गेनाइजेशंस में, आप देखेंगे कि वर्करों को सही सेफ वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको फिल्दी कंडीशंस में तो नहीं काम कराया जा रहा, उनके प्रॉपर ब्रेक्स तो मिल रहे हैं, वेरियस प्रोविजंस होते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट ने बताया है कि आप 9 घंटे से ज्यादा दिन में काम नहीं करा सकते किसी भी वर्कर से, और ओवर टाइम के लिए अगर आप ओवर टाइम कराते हैं तो उसकी डबल पे भी देनी है आपको, वो सारी चीजें हैं। एडोलेसेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज एन एडोलेसेंट? 15 साल से 18 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको एडोलेसेंट कहते हैं। अच्छा, एक और जबरदस्त एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ये पूछा जाता है अबाउट अप्रेंटिसेस। क्या अप्रेंटिस को एम्प्लॉय माना जाता है, क्या उनको पीएफ मिलता है? ये मेरे से खुद सवाल पूछा गया था इन माई इंटरव्यू। इट वाज आस्क्ड कि सो Mr. Navjot, just tell me that is an apprentice eligible for the provident fund benefit? So obviously I thought a while and then I answered. Fortunately I had read that। तो apprentice को employee नहीं माना जाता है और इसको provident fund benefit भी नहीं मिलता है, because he is not a full term employee। but इसमें एक चीज है, apprentice को वो benefit जरूर मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेफ वर्किंग कंडीशंस, उसको जो वेजेस हैं वो टाइमली दे दी जाए जितनी देर के लिए, उसको स्टाइपेंड होता है, नॉट वेजेस, नॉट द राइट वर्ड, स्टाइपेंड मिलता है अप्रेंटिस को। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है आपको ये निटी-ग्रिटी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना, ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, ये सारा अगर आप इन डेप्थ हो जाके पढ़ेंगे तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम व्हाई यू शुड नॉट क्रैक दिस एग्जामिनेशन, जस्ट गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन। फिर अगर हम बात करें रिकवरी ऑफ ड्यूज, ठीक है, रिकवरी ऑफ ड्यूज। अब ड्यूज का क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, अब किसी एम्प्लॉयर ने पीएफ डिपॉजिट नहीं किया हुआ है, वो 15 तारीख हो गई, अगले महीने की भी हो गई, हम उसको थोड़ा वक्त भी देते हैं, अब वो जो कुछ वक्त के बाद भी नहीं जमा करता है अगर, तो फिर क्या होता है, फिर उसके ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है, ठीक है। तो द कंसर्न्ड ऑफिसर इज डिप्यूटेड, फिर उसको अंडर सर्टन सेक्शंस उसको रिकवरी के लिए उसको बुलाया जाता है, देन ही इज मेड टू पे द ड्यूज विद पेनल्टी भी लगाई जाती है उस पर। तो ये सारा काम किसका रहता है, हमारा एनफोर्समेंट ऑफिसर का। एनफोर्समेंट ऑफिसर इज डिप्यूटेड फॉर दैट। देन हैंडलिंग अकाउंट्स एंड क्लेम। अब देखिए अकाउंट इनिशियली आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको अकाउंट सेक्शन में इंचार्ज बनाया जाएगा अकाउंट सेक्शन का, वहां पे आपके पास कुछ क्लेम्स आएंगे। क्लेम्स का मतलब आपके पास कुछ ऐसे एडवांसेस आएंगे, कुछ फाइनल सेटलमेंट के क्लेम्स आएंगे,
जहाँ पे कुछ हज़ार से लेके मतलब 1-2 हज़ार से लेके आप करोड़ों के क्लेम्स आपके पास आएंगे कि आप किसी डिपेंडिंग अपॉन उस बंदे का प्रोविडेंट फंड एक्यूमुलेशन कितना है। तो वहाँ पे आप उसको रिव्यू करेंगे कि मैंडेटरी जो क्लियरेंसेज हैं या मैंडेटरी इसकी सर्टिफिकेशंस ठीक हैं, इसके जो कंट्रीब्यूशन है वो टाइम टू टाइम आई हुई है। ईडीएलआई क्लेम्स आएंगे आपको, इंश्योरेंस, ईडीएलआई मतलब इंश्योरेंस क्लेम, जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस उसकी नॉमिनी को मिलता है, फैमिली को, वाइफ को या बच्चों को, जिनको भी मिलना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल किसी ने अपना जो पेंशन है, पेंशन क्लेम कराना है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे एज एन अकाउंट्स ऑफिसर, इनिशियल मैंने जैसे बताया, इनिशियल 1 ईयर में, 1 to 1.5 ईयर, 2 ईयर आपको अकाउंट्स में लगाया जाता है टू एक्सपोज यू टू द सिस्टम। अब आप एक्सपोज होंगे सिस्टम में तभी आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये आपका इनिशियल एक्सपोजर फेज होता है। देन एज आई टोल्ड अर्लियर, यू विल हैव टू लियाजॉन विद वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज। तो गवर्नमेंट बॉडीज के साथ आपका लियाजॉन करना पड़ता है, आपको पुलिस के साथ काम करना पड़ेगा। अब बैंक्स के साथ आपका काफ़ी काम करने को आपको मिलता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, कई बार फ्रॉड्स होते हैं, कुछ लोग फ्रॉड्स करते हैं, वो फॉल्स गलत बैंक अकाउंट्स दे देंगे या एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट को ना देके कोई और बैंक अकाउंट दे देता है। देर आर मिसक्रिएंट्स, ऐसा नहीं है, नॉट देर आर नॉट ऑल बैड फिश इन द सी, बट देर आर सम बैड फिश। तो उन बैड फिश के लिए हमें वेरियस एजेंसीज, आरबीआई के साथ या बैंक्स के साथ या अदर सोशल सिक्योरिटी, ईएसआई के साथ या पुलिस या अदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें कोलैबोरेट करने का अवसर मिलता है। वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा हाउ यू इंश्योर दैट such fraudulent activities don't happen. So lot of this is a very great opportunity, I would say. The work domain is very diverse, and एम्प्लॉयमेंट डेटा जो सरकार को दिया जाता है ईपीएफओ द्वारा, ईपीएफओ की सब्सक्रिप्शन के थ्रू पता चलता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, और पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस कुछ आते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो आपको पता चलेगा। अब ग्रीवेंस रिड्रेसल एक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पे। आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वर्कर भी अवेयर हो गए हैं, प्लस कई लोग विलीफाई करने के लिए भी ज़्यादा वर्कर्स को भी मिसगाइड करते हैं। बट जनरली क्या होता है आजकल, अब कोई अपनी ग्रीवेंस, किसी ने कुछ क्लेम डाला है या किसी को कुछ अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इश्यूज उनका क्लेम कई बार प्रोसेस नहीं हो पाता, कई बार है ना, बिकॉज वर्कलोड इज टू मच, तो उसकी वजह से। तो उस केस में क्या करते हैं, वो ट्विटर पे डाल देंगे, ट्विटर हैंडल पे डाल देंगे, टैग कर देंगे मिनिस्टर ऑफ लेबर को या सीपीएफसी को या ईपीएफओ को ऑफिशियल हैंडल को। तो वो फिर सीधे आपको ऊपर से नीचे प्रेशर आएगा कि किस तरह से काम करना है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अदरवाइज ऑल्सो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, एक अपना एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ईपीएफओ का, जहाँ पे अगर किसी वर्कर की किसी की क्लेम सेटलमेंट में टाइम लग रहा है तो वहाँ पे वो उसका टिकट रेज कर सकता है, वो फिर प्रायोरिटी पे देखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं द सिस्टम। दिस इज हाउ यू कोऑर्डिनेट विद दैट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एपीएफसी का भी यही है। एपीएफसी आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, फंड मैनेजमेंट, ये सारा रोल एपीएफसी का है, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस एंड एम्प्लॉय अवेयरनेस, ऑल ऑफ दिस। और लाइफ सर्टिफिकेट्स, एक लाइफ सर्टिफिकेट्स की भी बात है कि जो लोगों की पेंशन लगी हुई है तो हर साल उनका लाइफ सर्टिफिकेट उनको देना होता है, उनकी फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू या आइरिस स्कैनिंग के थ्रू उनका वो लाइफ सर्टिफिकेट उनको इशू होते हैं, जिससे वो क्लैरिफाई हो जाता है कि ये वही बंदा है जिसको पेंशन मिल रही है। या कई बार ऐसा होता है कि लोग कहीं फ्रॉड करते हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है पेंशन का, उसकी डेथ हो चुकी है या उसके मेंबर की भी डेथ हो चुकी है, कोई और इंसान उसकी जगह पे पेंशन ड्रॉ कर रहा है। तो उन चीज़ों को कर्व करने के लिए ये चीज़ें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और लीगल मैटर्स का क्या है कि आपको क्वाज़ी जुडिशियल, एपीएफसी के पास क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स हैं कि आप इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हो, वहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफिसर विल एक्ट एज अ इंक्वायरी ऑफिसर एज वेल। तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें आप आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको पता चलेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैंडेट, आई वुड से। You will be exposed to a lot of things, lot of how system works, how things are there, और एक sense of satisfaction तो obviously आपको रहने वाला है इसमें। तो that is what I will like to say here। and ठीक है, तो ये आपका प्रमोशंस का मैट्रिक्स है। मैंने पहले आपको बताया लेवल 10 टू लेवल 13, एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड एपीएफसी, आरपीएफसी 2, आरपीएफसी 1 एंड द एडिशनल सीपीएफसी। तो टॉप ऑफ द ट्री आपके सीपीएफसी होते हैं। he is generally an IS officer, mostly he is an IS officer. So this is the system। and if you talk about the salaries, this is the salary is handsome,
I don't give too much importance into what salaries are. You can go for yourself and go through the system, starting with 4,800, and then in next 4 years you will get 5,400 grade pay, but not the rank of APFC if you join as an enforcement officer. This is all the top of the tree. You can actually go through it, how things really function. ठीक है. अब आपको कुछ allowances मिलेंगे. Candidates who are selected you receive a variety of allowances, dearness allowance, HRA, medical allowance. फिर एक स्पेशल यहाँ पे ब्रीफ केस होता है आपको. You can every 1 to 2 years you can have a briefcase allowance. Apart from that, these are all, see, I always believe these are not the things that you should really focus on. Your focus should be on overall what you can contribute. Focus on what you can contribute to the nation. This is a byproduct. What you will get is going to be a byproduct, but your focus has to be what you can contribute and how you can ensure the delivery of services. और आपको जब satisfaction होगा तो सैलरी तो आपको मिलनी है, perks तो मिलनी है, that is something that you cannot control. और अभी आपका focus क्या होना चाहिए? अभी don't romanticize about the perks, don't romanticize about joining or everything. Right now the focus has to be laser sharp, tunnel vision. कहते हैं ना, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे. तो युद्ध आपके जीवन में, युद्ध क्या है इस वक्त आपके जीवन में? आपके जीवन में सो युद्ध है आपकी तैयारी. ठीक है, या तो प्रण को तोड़ा होगा, डिड यू ब्रेक योर वाव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, और या फिर रण से भागे होंगे, डिड यू run away from the fight, from the challenge of this cracking this examination, or for that matter any challenge that life offers to you. That you have to understand, that you have to find for yourself. Are you the champion? Are you your samurai? Do you have that inner gumption, the inner grit, the determination to go till the very last? Never yield in life. I would rather say, this country of ours, we don't need sheep, we need warriors, we need lion, we need people who can make a difference. We need people who want to create some impact in this life. तभी हमारा देश महान बनेगा. तो ये चीजों पे फोकस होना चाहिए. ये एग्जाम इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स इन लाइफ. I would always tell you, and I always keep telling this to the aspirants, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद को इंपॉर्टेंस दो. खुद को इंपॉर्टेंस, लेट मी एक्सप्लेन. एग्जाम आपसे बड़ा नहीं है. कोई भी एग्जाम हो गया, और फॉर दैट मैटर नथिंग इन लाइफ इज बिगर देन यू. You are the most important thing in this world. You should think yourself as capable of, scaling the Mount Everest or crossing the big seas. You should be unfathomable because you have infinite potential. जो voices of dissent है ना, जो voices naysayers की voice है ना, उनको block करना है अपने mind से. Tunnel vision होना है, बिल्कुल सामने देखना है. You don't have to go astray. इधर उधर distract नहीं होना है. Because if you go distract, if you put your energy into what doesn't feed your goal, then you are taking away, something that is very important to you. You are doing a criminal act by, jeopardizing your own future. The focus has always got to be on the things that matter and the things that you can control. Focus on the things that you can control. And only thing you can control is your own actions. You cannot control the result. You cannot control what kind of question paper is going to come. You cannot control how you're feeling that day, but what you can control. Viktor Frankl, if you go read this book, Man's Search for Meaning. Viktor Frankl, he said that circumstances outside of us can take away anything, but not our will to respond, not how we respond to adversity, not how we respond to challenges. So my stark and what you say blunt message to you is, you should do what you can where you are with what you have. Don't ever crib in life. Right now you may feel that you may be the dark valleys of life. Don't just keep waiting there. Start scaling that mountain. You will reach the top. अभी वैली में है, परेशान है, पता नहीं चल रहा है तैयारी कैसे करनी है. Reach out to people. You can reach out to me. You can reach out to other mentors. You can reach out to people who ask for help. See, if you don't ask for questions, you will not get the answers. Similarly, when it coming to this examination also, you have to make the right progress, show the right intent and work in the right direction. Get your syllabus, make your syllabus as your best friend. Syllabus अपने सामने रखिए.
उसको आइडेंटिफाई कीजिए। अभी हम सिलेबस की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम नाउ। अभी हम एग्जाम की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है आपका, जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है इस तरह से इसी का एग्जाम होता है 2 घंटे का। 120 सवाल होंगे आपको 2 घंटे में, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपको 300 नंबर का एग्जाम होगा। एवरी क्वेश्चन विल बी फॉर 2.5 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन विल बी 2.5 मार्क्स एंड दी रेक्विजिट नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3, जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी, एंड सब क्वेश्चन के इक्वल। दैट्स सेल्फ अंडरस्टैंडेबल। ओनली थिंग इज 2 आवर्स का पेपर है आपका, 120 सवाल है, डिफरेंट सेक्शंस हैं। आपको अभी क्या करना है, आपको अभी अपने आप को क्लैरिटी लानी है कि what is it that I want to do, what is it that do I really want to crack this examination, and once you decide that this is the examination I want to take, then you have to find out, am I capable enough, to put the energy, am I committed enough, then फिर सिलेबस निकालिए। सिलेबस देखते हैं क्या है इसमें। आपका 2 स्टेज एग्जामिनेशन, पहला आपका रिटन एग्जाम होगा। देखिए अब सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना, आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस के आपको 9 पेपर लिखने हैं, 7 कंपलसरी हैं, फिर 2 आपके जो 2 कंपलसरी पेपर हैं आपके, जो इंग्लिश और हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, और बाकी आपके ऑप्शनल जीएस ऐसे पेपर है, और उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। यहाँ पे क्या है, आपका एक रिटन एग्जाम होगा, आपने वो क्वालिफाई किया, आप इंटरव्यू दोगे और आप फाइनल सिलेक्शन आपको मिलेगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। 25% वेटेज आपकी इंटरव्यू की होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप रिटन एग्जाम की तैयारी करें, बट इंटरव्यू की तैयारी अभी कैसे करें। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको अभी एक्टिव प्रिपरेशन नहीं करनी इंटरव्यू की। ये नहीं कि अभी से इंटरव्यू की मैं मॉक टेस्ट लेने लगूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी, जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लेबर लेजिस्लेशन पढ़ रहे हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ट्राई टू बिल्ड ओपिनियंस, ट्राई टू हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स, और अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। जनरली बच्चे मेरे पास आते हैं इंटरव्यू से पहले, सर हम हॉबी में क्या लिख दें, सर हॉबी ये लिख दें ठीक रहेगा। यार देखो, हॉबी आपको कुछ लिखनी नहीं है, मैं कहता हूँ खाली छोड़ के आओ, हॉबी वाला सेक्शन खाली छोड़ दो, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। कोई रूल नहीं है ना। एक्चुअली ये जो हवा बना रखा है मार्केट में कि यही एक तरीका है, वैसा नहीं होता है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है। आपको कोई हॉबी आप बोल सकते हैं, एक्टिव हॉबी नहीं परस्यू करते हैं, तो आप जो ऑनेस्टली बोलिए उसको डिफेंड कर दीजिए एग्जाम में कि सर दिस इज व्हाट आई डू, आई डोंट थिंक इट क्वालिफाइज एज अ हॉबी। Similarly, you also develop a personality, leadership quality, communication skills, लोगों से बात कैसे करना है, वो चीज़ों को आप डेवलप कीजिए। वो आपको इंटरव्यू तक वेट करने की जरूरत नहीं है, और आप कम्युनिकेशन स्किल्स 2 दिन में तैयार नहीं कर सकते। आप जब से आप बचपन से आप बड़े हुए हैं, तब से आप धीरे 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 आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रेंथन हो रही हैं। आप उसी पे काम कीजिए, उसको थोड़ा और फाइन ट्यून कीजिए, एंड टॉक टू पीपल, टॉक टू मेंटर्स। यू कैन रीच आउट टू मी एज वेल, Navjot Singh_IB, that's my handle. You can, if you want, you can reach out to me, Navjot Singh_IB. So this is my all on social media, Instagram, Facebook, YouTube. You can reach out to me here and you can ask questions, or anyone else you feel comfortable with. अगर आप किसी और से बात करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कोई और आपके टीचर है, आपके बड़े भाई है, बड़ी बहन है, कोई मेंटर है आपका, उनसे रीच आउट कीजिए, आस्क फॉर हेल्प, because don't sit, nobody is going to come out and help you. If you keep sitting in a one dark corner, या मेरी लाइफ में ये हो गया, don't crib, don't cry, don't whine, just fight, go out there in the open, get your तलवार out, अपना स्वॉर्ड लेके निकल जाओ मैदान में। पहले तलवार को शार्पन करना पड़ेगा ना, ऐसे जंग में नहीं जाओगे। तो अभी वक्त है आपका, आस्क फॉर हेल्प एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो अब इसका सिलेबस के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, नोटिफिकेशन आपकी जनवरी से जून जब भी आती है और एग्जाम आपका हो जाता है उसके हिसाब से, ठीक है। अब आपका सिलेबस क्या है, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इनमें से मैक्सिमम चीज़ें पढ़ रखी होंगी। और बाकी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश मैं तो कहता हूँ जनरल इंग्लिश आपके फ्री के मार्क्स हैं। अगर आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लें, 20 सवाल आते हैं जनरली, 20-22 सवाल, इसमें से तो आपको 20 के 20 ठीक करने हैं, 100% एक्यूरेसी। ये दोनों एपीएफसी में भी पूछे जाएंगे और आपका जो एनफोर्समेंट ऑफिसर, दोनों एग्जाम्स में। उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग आपने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है आपने, स्पेक्ट्रम में आपके पढ़ रखा है कि गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी 1915 में वापस आए, फिर वो जो इंडिया का 1909 से लेके 1947 तक, उस फेज पे ज़्यादा फोकस करो। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है, क्या उस टाइम पॉलिसी, उसके बाद
गुड गवर्नेंस इंडिया, गुड एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी हम कहते हैं, वो एक्ट आया। उस एक्ट ने किस तरह से जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को चेंज किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर छीन ली गई और उसको किसके अंडर लेके आया, ब्रिटिश पैरामाउंसी, जो प्रिंसली स्टेट थी, they were brought under the princely British paramountcy, and Indian provinces, they were kind of brought under direct control of the British government. That happened. Then how 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसके बाद जो मॉडरेट फेज आया, एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म आया, तो उसके बाद कैसे कैसे आज़ादी की तरफ बढ़े। तो ये आपने पढ़ना है, ये सारे बहुत आसान सवाल है, इसमें भी आपको जितने 10 12 15 सवाल आते हैं वो अच्छे से करने हैं। फिर कल्चर का सेक्शन है। कल्चर का सेक्शन वैसे तो इसमें मेंशन किया है कि ईओ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पर देखिए कोई स्ट्रेट बाउंड्रीज नहीं होती है, स्ट्रेट जैकेट बाउंड्रीज नहीं कि ये सवाल वहां पूछा नहीं जा सकता। कल्चर आपको हिस्ट्री का पार्ट मान के पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार करना है कल्चर को, हेरिटेज को, डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स, वेरियस स्कूल्स ऑफ आर्ट, हिंदुस्तानी, देन गांधारा, मथुरा एंड अमरावती स्कूल, बुद्धा के डिफरेंट जिसमें प्रोट्रूडेड हेड था, कर्ली हेयर, वो सारा हेलेनिस्टिक इम्पैक्ट, वो सारा वो जो पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपका आ गया नेशनल करंट इवेंट्स। देखिए करंट इवेंट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे होंगे, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां पे भी आपने तैयारी की होगी, आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ करंट अफेयर्स आपको जरूरी है, आप एसएससी या बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, वहाँ पे भी जरूरी है। तो ये कुछ नई चीज नहीं है जो आपको मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा उसको चैनलाइज करना है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। नो, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन ये इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। आपको कुछ पॉपुलेशन थ्योरीज लाइक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, मैल्थस की थ्योरी, है ना, किस तरह से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो सब चीज़ें पढ़नी है। और डिफरेंट मीट्रिक्स क्या होती है, एज सेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी पढ़नी है। ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट पड़ा, ग्लोकलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपको बस इस पर फोकस करना है। और सबसे फेवरेट आप सबका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो लक्ष्मीकांत आप सबने पढ़ रखी है, तो कुछ नया तो कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। तो लक्ष्मीकांत को रिवाइज कीजिए और एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस निकालिए, उसमें देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। 15-20 सवाल अगर आते हैं, 15 सवाल तो आपको सॉल्व करना चाहिए। फिर आपका इकोनॉमी आ गया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कल्चर, हेरिटेज, ये सब तो आप वहाँ पे यूपीएससी में पढ़ते ही हैं, यूपीएससी में आपने पढ़ा ही है, तो कुछ नया तो आपने पढ़ना नहीं है। तो ये चीज़ें आपको एकदम अपनी याद रखनी है ना। तो हमने यहाँ तक देखा है कि इंडियन इकोनॉमी है ना। अब इंडियन इकोनॉमी आपने पढ़ रखी है, पॉलिटी आपने पढ़ रखी है, so all of these things they are going to be helpful. Now coming back to something that is going to be exclusive for this examination. One thing is the accounting principles and auditing, and second is industrial relations and labor laws. So I have been, guiding students on these industrial relations and labor laws and taken exclusive classes as well. So see, अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज की बात करें और अकाउंटिंग को भी मिला लें, अराउंड 30 क्वेश्चंस, 30 सवाल आपके इस सेक्शन में आएंगे। सो 120 में से 30 सवाल अगर यहाँ से आ रहे हैं तो दे कैन बी मेक और ब्रेक, दे कैन बी डिसाइडिंग फैक्टर, and I'm sure you don't want to just skip this section. You have to focus categorically on the topics that are mentioned in this. For example, labor codes हो गए, conciliation, bargaining, trade unionism, collective bargaining और international labor organization, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें पढ़ने वाली हैं। तो ये आपको यहाँ से कवर हो जाएगा और ये आपको एक्सक्लूसिवली किसी और एग्जाम के लिए आप नहीं पढ़ते हो। सो अगर आपके लिए, आपको इस एग्जाम में कुछ अगर एक्स्ट्रा जो चीज पढ़नी है वो सिर्फ यही है, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू वांट टू बी स्टडी, दिस पार्ट है अकाउंटिंग, लेबर लॉज एंड इंश्योरेंस। सो दैट इज समथिंग दैट यू गोइंग टू बी स्टडी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जनरल स्टडीज हो गया, जनरल साइंस हो गया, ठीक है, जनरल साइंस आप बाकी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वो आप यहाँ से कर लीजिए। देन यू हैव छोटा सा मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आप एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं कुछ, जैसे क्वांट के सवाल आ गए, कुछ रीजनिंग के आ गए, वो आप बाकी जो एग्जाम्स में पढ़ते हैं वही यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, हल्का सा, कुछ नहीं है इसमें। देन यू हैव स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स का आपका सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपका ईओ एग्जाम में इतना नहीं आएगा। और बाकी आपका हो गया
सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, ईपीएफ एक्ट, ये सारे एक्ट। तो इतना ज़्यादा देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको तैयारी नहीं करनी है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द बेसिस आर कवर्ड। अगर आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी मोस्ट ऑफ द बेसिस आर कवर्ड। सो दैट इज हाउ यू हैव टू बी अप्रोचिंग दिस एग्जामिनेशन। एंड फॉर गाइडेंस एंड मेंटरशिप we are here to guide you. I am here, I'm available. You can access me on my handles, as well as you can approach the team as well. Comments में आप अपना queries mention कर दीजिए, team will try to resolve that as well. और देखिए हमें कोशिश यही करनी है कि हम सबसे पहले किसी भी एग्जाम, whenever we are preparing for any particular examination, our idea has to be first make the syllabus as your Bible. सिलेबस को इंटरनलाइज करें, अपने स्टडी टेबल पे लगा दीजिए, और कौन से सेक्शंस में आप वीक हैं, कौन से में स्ट्रांग हैं, वो आइडेंटिफाई कीजिए। सीक हेल्प वेयर एवर पॉसिबल, सब्सक्राइब टू राइट काइंड ऑफ अप्रोच, राइट मेंटरशिप, एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अब ये एग्जाम 2025 में डेफिनेटली होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। नोटिफिकेशन इज गोइंग टू कम एनी टाइम सून, एंड आई वुड एनकरेज यू टू नॉट लेट योर गार्ड डाउन। अभी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है, तो आप सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में आपकी मैक्सिमम तैयारी, जो लोग सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका मैक्सिमम जीएस पोर्शन इसमें से कवर हो जाएगा, और जो कंपोनेंट बच जाता है वो आप obviously you can prepare for that specific portion with us also. We are also going to be guiding you on that. You can prepare that. और अगर आप ये चीज़ नहीं, you cover all these bases, then I think I encourage you to crack this examination in the first attempt itself. It's very much doable. Very much. See, आपको एक सीट चाहिए, आपने तैयारी, आप देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपका कंपटीशन उन 5 लाख या 2 लाख या 3 लाख जितने भी बच्चे एग्जाम को फॉर्म भर रहे हैं या एग्जाम में अपेयर भी हो रहे हैं, आपका कंपटीशन उनसे नहीं है। कोई बंदा कैसी तैयारी कर रहा है, आपके रिजल्ट पे उसका असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप तैयारी अच्छी नहीं करेंगे उसका असर जरूर पड़ेगा। तो आपको अपनी तैयारी को फाइन ट्यून करना है, अपनी यूनिक पॉसिबिलिटीज को समझना है, अपनी यूनिकनेस को समझना है कि मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, मैं इस तरह से पढ़ती हूँ, मुझे किस तरह से ये चीज स्ट्रैटेजी मुझे सूट करती है। कई लोग 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं, कई लोग एक ही सब्जेक्ट को खत्म करते हैं, वो उनकी अलग स्ट्रैटेजी। तो फाइंड योर बेस्ट वे फॉरवर्ड। एंड एक चीज और ध्यान रखें, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स लिमिट करें, ज्यादा सोर्सेज पे ना जाएं। प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस, वो भी, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। तो ये सारी चीजें, सी द आइडिया हियर, माय आइडिया ऑफ एम्फसाइजिंग हियर इज ओनली वन, that you should always look forward. You should always try to be the best version of yourself. And when it comes to cracking this examination, right approach is very important. आपको कहाँ से पढ़ना है, सही चीज़ें आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको बहुत केयरफुली देखनी है। And I'm sure if you follow the regimen, follow the drills, you will definitely crack this examination. And ओवरलैपिंग टॉपिक्स हमने यहाँ मेंशन किए, मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप देख लीजिए। यही ओवरलैपिंग टॉपिक्स है दोनों सेक्शंस में, ईपीएफ एपीएफसी में कौन से हैं, और जो एक्सक्लूसिवली हमने जो स्टडी करने हैं एपीएफसी के लिए, एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए, वो ये टॉपिक्स है। तो दिस इज ऑल आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। एंड ओनली वन थिंग आई हैव टू से, कि कभी भी हताश मत होइए, जीवन में हाई एंड लो फेज आते रहते हैं, और देखिए अपने आप को कम आंकना बंद कीजिए। आपके अंदर वो काबिलियत है, अगर आप खुद को इन्फ्लुएंस होने देते हो, आप क्या करते हो, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आप जब हम तैयारी करते हैं, वी आर ऑल वल्नरेबल, हम सब वल्नरेबल होते हैं। हमें लगता है कि क्या मेरी तैयारी ठीक है, क्या मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है, तो हम खुद को कंपेयर करते हैं। कई बार हमारे दोस्त बोलेंगे कि यार मैंने ये किताब पढ़ ली, तूने नहीं पढ़ी क्या, अच्छा कोई, हमें वो रेस्टलेसनेस हो जाती है। एग्जाम पास आता है, वैसे ही एंजाइटी बढ़ती है। तो अपने माइंडसेट पे भी काम कीजिए। मेंटरशिप आपको एक हद तक मदद करेगी, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे भी अपने आप को सही रखना है, ट्रेन रखना है, सही फ्रेंड सर्कल बना के रखना है। वो चीज़ें आपको एग्जाम में ओवरऑल हेल्प करेंगी। तो मेरा आपको यही सुझाव होगा कि आप इस एग्जाम के लिए तत्पर हो जाइए, तैयार हो जाइए, और अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं, अगर आप सही अप्रोच से काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। और आपको गाइड करने के लिए तो आई एम हेयर ओनली, आई एम हेयर टू शो यू द राइट गाइडेंस। whatever little I know, I'll be sharing with you. I'll try to help you out. I'll try to guide you out, है ना। तो यही मेरी आपको सुझाव होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारा कर्तव्य है कोशिश करना, प्रयास करते रहना,
अडिग रहना अपने मकसद में, अपने कार्यशील रहना. And if we are working like this, if we are working in the right direction, definitely we are going to do good. And definitely see, एग्जाम को क्रैक करना इंपॉर्टेंट है, बट अपनी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी सामने रखना जरूरी है. अपनी वर्थ को, मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि अपनी वर्थ को किसी एग्जाम से जोड़ के मत देखिए. एग्जाम को एग्जाम तक रखिए. अपने आप को इतना पागल मत बनाइए ताकि कोई एग्जाम आपको परेशान कर जाए. आप उस एग्जाम से ऊपर हो. एग्जाम क्लियर होता है, अच्छी बात है. नहीं क्लियर होता तो आप एक इंसान तो बनेंगे. लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको कोशिश जरूर करनी है, लेकिन एग्जाम को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है. खुद को मजबूत बनाना है. खुद को वो काबिलियत रखनी है अपने आप में कि मैं वो शख्स हूं, मैं वो लड़का हूं, मैं वो लड़की हूं जो कुछ भी कर सकता है. तो ये एग्जाम तो एक छोटा सा उस चीज का जरिया है ना. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ. इट इज अ सिन टू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज वीक. So always consider yourself as the strongest person in the room. Always outwork everyone. Don't focus on what others are doing. If we focus our energy on what we can do, what we can contribute, what we can actually do, that is how we can actually make the difference. That is how we make the difference. When we become the best version of ourselves, and that is how we can crack not just this exam, anything in life. That is my suggestion to you. That is my approach to you. And I think that's enough has been said. तो इस एग्जाम के लिए आप आइए. यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट करता है, एक प्रेस्टिजियस जॉब है. और अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, आपको ये बता दिया कि यूपीएससी के टॉपिक्स कौन से हैं और नॉन यूपीएससी टॉपिक्स कौन से हैं, इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे. और यूपीएससी जो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 2 टियर एग्जामिनेशन है. आपको रिटन एग्जाम देना है और फिर आपके बाद इंटरव्यू होगा. तो आपको, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते हैं, तो आई वुड से यूपीएससी आप करें, सिविल सर्विसेज ऑब्वियसली आई वुड से इफ यू आर प्रिपेयरिंग, गो अहेड विद इट ऑल आउट. अपना बेस्ट दे दीजिए वहां पे, लेकिन अपना एक थोड़ा सा, आई वुडंट से बैकअप, आई डोंट बिलीव इन बैकअप्स. आई वुड से यू राइट दिस एग्जामिनेशन एंड सी फॉर योरसेल्फ. आपको जहां जाना है, आप यू फील यू सुटेबल एनफ, गो अहेड विद इट. Always have an open mind and a fearless spirit in yourself. That is how you create a difference. आप एग्जाम को इतना इंपॉर्टेंस मत दो. आप पढ़ो, मेहनत करो, 10 एग्जाम क्रैक कर लो, फिर डिसाइड करो मेरे को ये वाला ज्वाइन करना है, उसमें से इसको भी कंसिडर कर लो. तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से दिस. Always look forward. Always, slowest is the only way to be. You don't need to just be just go rallying around. आप आराम से धीरे धीरे चलते रहो, काम करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ 8-10 घंटे आप काम करो, आपका काम बन जाएगा. यू विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. ठीक है. तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं. CAPF की कर सकते हैं, नबार्ड की, EPFO. तो ये कुछ प्रोग्राम है, तो इसको भी आप प्रोग्राम को देख लीजिए. इससे आपको एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो व्हाई नॉट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. आप इसको ग्रैब कीजिए अच्छे से, है ना. तो दैट्स अबाउट इट. एंड दिस इज, मतलब 4 एग्जाम्स की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं. सारे प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम स्ट्रेटजी, करंट अफेयर्स, ऑल ऑफ दिस यू विल बी गेटिंग इन दिस पैकेज. So do explore this and do get hold of this examination. इस एग्जाम को क्रैक करने के आप प्रयास कीजिए. और EPFO के लिए I am here guiding you. And if you want to crack this examination, go ahead with it. Okay. And आपका वक्त भी बचेगा और affordable. Obviously, I think this is PW has done this amazing work. They have made their courses very affordable. So why not? You should take the advantage of that. And when you have good mentors available, I think sky is the limit and beyond. Dr. Vikram Sarabhai once said, Dr. Vikram Sarabhai, when India launched its first, rocket into space in 1963 from Thumba, so he said, sky is not our limit. Someone said that sky, you have aced the skies. Dr. Sarabhai said, sky is not a limit. Sky is just the beginning. So my dear friends, sky is just the beginning for you. Go hunt your skies, chase the impossible, and become the best version of yourself. That's all from my side. And again, as you see, I have tried to deliver a few things that I know in my humble capacity. I've tried to give you a right perspective about things, how you should approach, not just this examination, but in general, how you need to go forward. And I am sure you all are the promising, proud young citizens of this great nation who have in them to create a history, who have in them to create an impact on the society. And this examination, cracking this examination, is one of those opportunities for you.
and I am all here to help you, and other team members, other people who are involved in this program, they are also going to be helping you. So आगे बढ़िए और तत्परता से काम कीजिए, और भारत को एक महान देश बनाने में, देखिए अपने लिए तो सब करते हैं ना, अपने लिए करिए काम आप. यू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू वर्क फॉर योर ओन प्रोग्रेस, वेलफेयर ऑफ योर फैमिली. बट if you have a bigger vision, if you have a bigger vision in life, if you have देश प्रेम की वो भावना आपके अंदर अगर एक बड़े ही तत्परता से अंदर उमड़ रही है, तो आपको हताशा नहीं होगी. मैंने ये एक्सपीरियंस फील किया है, जब हम थोड़ा सा सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश इन द सेंस अपने ही सक्सेसफुल गोल्स के लिए सोचते हैं, अपने वेलफेयर के लिए सोचते हैं, तो एक मोमेंट पे हम हताश हो सकते हैं. लेकिन जब हम देश के बारे में सोचेंगे, समाज को बेहतरी करने के सोचेंगे, तो हमारा अपने आप अच्छा हो जाएगा. वी विल डू गुड इन आवरसेल्व्स. दैट अप्रोच शुड बी देयर. तो हताशा नहीं होनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, पॉजिटिव रहना है. और अगर कहीं बुरा लो फील करते हैं तो रीच आउट टू पीपल. देखिए तैयारी सिर्फ पढ़ाई का रोल नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक मेंटल हेल्थ मेंटेन करनी है, अपनी सोशल वेलबींग मेंटेन करें, आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक कर सकते हैं वॉक करें, आप जो कर सकते हैं करें, पर एक अपना एक ओवरऑल लाइफ का एक बैलेंस बना के रखें. पढ़ाई को उसका एक हिस्सा बनाएं, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाएं, जितना टाइम देना है उतना ज़रूर दीजिए, पर साथ में अपना एक ओवरऑल एक वेल बैलेंस पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए. क्योंकि इंटरव्यूज में या बाकी अदरवाइज इन लाइफ ऑल्सो पढ़ाई is a part of it, but the overall how you have shaped your personality, that is going to define your success in life. Exam is just a byproduct of that process. So that's all from my side, friends. I'm sure you would definitely put your best foot forward and give your contribution in making India great again. As Mr. Trump said, MAGA, make America great again. I would say make India great again. I would say MEGA. That's all from my side. Thank you so much, friends. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hind.